رب سے جڑنے کا سفر دل کی صدا بن جائے، زندگی کا ہر اندھیرا روشنی سا بن جائے۔ پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق لگ گیا ہے۔ Are you crazy فاطمہ؟ آج تک تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے ہولیے میں؟ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ سو کالڈ لوگ کیا کہتے ہیں۔ کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ کیا وہ میری جگہ اللہ کو جواب دیں گے کہ اللہ فاطمہ کو معاف کر دیں، اس نے ہماری خوشی کی خاطر پردہ نہیں کیا تھا؟ بتائیے، کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گی؟ وہ فوراً سے آگے بڑھ کر بیسن پر جھکی اور اپکائی کی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، ہاتھ کانپ رہے تھے، ماتھا پسینے سے شرابور تھا۔ وہ رنگ نہیں تھا، وہ خون تھا جو اس کے منہ سے نکلا تھا، اور اب خون کی الٹی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں جناب؟ زیادہ ہی پیارا لگ رہا ہوں کیا؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک تعریف اس رب کی جس نے مجھے بنایا۔ خوش فہمیاں لوگوں کی، جیلس ہوتی ہوں مجھ سے؟ مجھ جیسی گناہگار کی کیا اوقات۔ استغفر اللہ۔ پتہ ہے بھیا، ابو کے بعد امی بہت اداس رہتی ہیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں حکمت ہوتی ہے، ہم اس کے فیصلوں پر راضی ہیں، مگر کبھی کبھی حکمتیں ڈھونڈنے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی، دل بس ڈگمگاتا ہی رہتا۔ یعنی اللہ پر بھروسہ رکھو، ضروری تو نہیں کہ وہ اپنی ہر حکمت دکھائے۔ بعض دفعہ ہمارا ایمان بالغیب بھی آزمایا جاتا ہے، جو نظر نہیں آ رہا اس پر بھی آنکھیں بند کر کے ایمان لے آنا، بنا کوئی سوال کیے خود کو جھکا دینا۔ میں سمجھ سکتا ہوں امی کس کرب سے گزر رہی ہیں، میں نے انہیں چھپ چھپ کر روتے دیکھا ہے۔ انہیں کچھ تمہاری فکر بھی بڑھ گئی ہے اب۔ میری؟ کیوں؟ تمہاری شادی کا انہیں یہ فرض اب ابو کے بغیر پورا کرنا ہے، تو اسی کا بوجھ انہیں تھکا رہا ہے۔ معاذ کی بات سن کر قرۃ العین یکدم اداس ہو گئی، آنکھیں پھر سے نم ہو گئی۔ بی بی جی، بیگم صاحبہ کہہ رہی ہیں تیار ہو جائیے، شام کو حیدر بابا کے لیے لڑکی دیکھنے جانا ہے۔ فاطمہ صغرا کے اچانک آنے پر چونک پڑی۔ حیدر بھائی کے لیے؟ یہ بات کب شروع ہوئی؟ پتہ نہیں بی بی جی، بڑی بی بی جی تو 2 دن سے تیاری کر رہی ہیں، شاید حیدر بابا نے پرسوں ہی انہیں بتایا ہے۔ اوہ اچھا، ٹھیک ہے۔ جی بی بی جی، میں آپ کے کپڑے پریس کر دوں شام کے لیے؟ ہاں، نہیں میں انشاءاللہ دیکھتی ہوں، آپ چلی جائیں۔ کیسے بتاؤں ماما کو، تکلیف اب بڑھتی جا رہی تھی۔ فاطمہ نے جاتی ہوئی صغرا کو دیکھتے ہوئے سوچا، جو اب تک دروازہ بند کر کے جا چکی تھی۔ فاطمہ جانے سے آدھا گھنٹہ پہلے مسز ریان کے کمرے میں ڈرتے ڈرتے آئی۔ وہ صبح کو ڈانٹ سن چکی تھی، اس لیے خود کو نارمل رکھنے کی پوری کوشش کی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مما، آپ نے بتایا ہی نہیں حیدر بھیا کے متعلق۔ تم گھر بیٹھو تو کچھ بتاؤں، تمہاری تو اپنی زندگی ہے، کسی اور سے کیا لینا دینا۔ خیر، تمہارے بھائی کی پسند ہے، ڈاکٹر ہے۔ تمہارے بھائی کو تو ویسے بھی ڈاکٹر چاہیے تھی، اس نے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ میں خود ڈھونڈوں گا۔ تصویر دکھائی تھی حیدر نے، پیاری بھی ہے، آج انشاءاللہ دیکھ آؤں گی۔ اگلے ہفتے تمہارے بابا آ رہے ہیں، پھر ہم سب جلد ہی فائنل کر دیں گے۔ شاید لڑکی والوں کو بھی جلدی ہے۔ انہوں نے فاطمہ کو ڈریسنگ ٹیبل کے مارچ سے ہی دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا۔ اچھا، ماشاءاللہ، اللہ سب بہتر کریں، بھائی کو ڈھیروں خوشیاں دکھائیں، آمین۔ مسز ریان نے ڈائی شدہ بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے فاطمہ کی اس بات کو بالکل اگنور کرتے ہوئے پوچھا، خیر تم آج کیا پہن رہی ہو؟ وہ جو پچھلے ویک ڈیزائنر سے تمہارے لیے آؤٹ فٹ منگوایا تھا نا، لیمن کلر کا، وہ تمہیں سوٹ کرے گا، وہ پہن لو۔ اور سنو، اچھے سے تیار ہو کر جانا۔ ابھی وہ یہ بات کر ہی رہی تھیں کہ اتنے میں مسز ریان کا فون بجا۔ فاطمہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ وہ کیا بتانے آئی تھی اور اب کیا نئی آزمائش اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اپنی بات ختم کرتے ہی مسز ریان فون سننے میں مصروف ہو گئیں۔ فاطمہ اداس چہرہ لیے ان کے روم کا دروازہ بند کرتے ہوئے نیچے اپنے کمرے میں آ گئیں اور الماری سے اپنا نیا عبایا نکال کر ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئیں۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ سورت نور کی آیت اس کے کانوں میں گونجی۔ نور، وہ کیسے خود کو نور سے محروم کر دے، وہ نور جو خود کو اللہ کے لیے چھپائے بغیر نہیں ملتا۔
आंख से एक आंसू निकलकर हाथ में पकड़े नर्मो मुलायम सियाह हबाया पर गिरकर जज्ब हो गया। दो माह से शुरू हुई शादी की तैयारियां आज अपने इख्तिताम पर पहुंच चुकी थीं। आज रात नायला की रुखसती थी। शहरयार इस रिश्ते से बिल्कुल खुश नहीं था, मगर उसकी माँ उसे कुछ भी बोलने नहीं दे रही थी। अगर वो कुछ कहने भी लगता तो बस एक ही जुमला कहती, तूने कौन सा बहन के लिए अच्छे रिश्ते दिखा दिए हैं जो अब तेरे कहने पर इस रिश्ते से हाथ धो बैठूं? ये सुनकर वो सर झुका लेता। दुरुस्त ही तो कह रही थी अम्मा, कहाँ मिलते थे आज नेक और शरीफ लड़के। ना उसका सोशल सर्कल बड़ा, ना उसकी बहन दीनदार। वाकई कहाँ से ढूंढता वो, इसलिए खामोश हो जाता। कैसी लग रही हूँ शहरयार? रात को वो किराए की ली गाड़ी पर उसे पार्लर से लेने आया था। पार्लर के दरवाजे से निकलती नायला तो किसी और ही जहां की शहजादी लग रही थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत थी, मगर शादी का अलग ही रूप होता है। उसी रूप में ढली वो मासूम और शर्माई हुई सी गुड़िया लग रही थी। माशाल्लाह, अल्लाह बहुत खुश रखे तुम्हें। शहरयार ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम खुश हो ना शहरयार? मेरे खुश होने से क्या होता है, तुम और अम्मा खुश हैं, मुझे और क्या चाहिए? उसने अपनी नजरें झुकाते हुए कहा। शायद आंखों में आने वाली नमी छुपाना चाह रहा था। दोनों खामोशी से गाड़ी में बैठकर मैरिज हॉल की तरफ रवाना हो गए थे। कितनी प्यारी बहू मिली है ज़नेरा को। अज़ेर तो बड़ा खुशकिस्मत निकला, मगर गरीब घर की लड़की है। पता नहीं ज़नेरा ने अपने स्टैंडर्ड के लोगों में क्यों नहीं रिश्ता किया अज़ेर का। ज़नेरा बड़ी चालाक है। छोटे घरों की लड़कियां जरा दबकर रहती हैं ना, इसलिए उसने सोच समझ कर हाथ मारा है। शहरयार शादी हॉल में मुख्तलिफ औरतों के कमेंट सुनकर मजीद परेशान सा हो रहा था। उन सब की नजरें स्टेज पर थीं, जिस पर नायला और उसका शौहर अजीज मिलकर केक काट रहे थे। स्टेज के आगे बला का तूफान था। लोग धड़ाधड़ इस नई जोड़ी की तस्वीर लेने में मशगूल थे। शहरयार का दिल कर रहा था वो एक एक का कैमरा और मोबाइल पकड़कर तोड़ दे। उसे इस लम्हे इंतहा की बेबसी महसूस हो रही थी। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, या शायद कर नहीं पा रहा था। दिल घुटन से भर चुका तो बेबस होकर शहरयार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने सोफे पर बैठी अपनी बेटी और दामाद की सदके वारी जा रही थी। अम्मा, क्या औरत दुल्हन बनकर नुमाइश की दुकान बन जाती है? दिल घुटन से भर चुका तो बेबस होकर शहरयार अपनी माँ से पूछने लगा, जो स्टेज के सामने सोफे पर बैठी अपनी बेटी और दामाद के सदके वारी जा रही थी। चुप कर जा, अब बंदा क्या खुशी भी ना मनाए? उस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। ये दुल्हन का भाई है? ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बारे सख्त होते हैं। आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। इन्हें दीन बस मस्जिद और मदरसे में ही याद आता है, वरना बहन की शादी ऐसी जगह करता। उस लम्हे उसे शदीद दुख हुआ था। पीछे मुड़े बगैर उसने दुख भरी एक नजर स्टेज पर बैठी बहन और दामाद पर डाली, जो अब एक दूसरे को हंसते हुए केक खिलाने में मसरूफ थे। इर्द गिर्द खड़े लड़के वाहियात किस्म की हू वूटिंग और चीखो पुकार कर रहे थे, जैसे इस रोमांटिक सीन से महजूज हो रहे हों। बैक पर लगा हल्का म्यूजिक और औरतों के लगाए परफ्यूम्स की खुशबू से माहौल महकता जा रहा था। मिल्की तेज होती रोशनियां इस मखलूत फंक्शन में बैठे हर मर्द औरत के जज्बाते शहवत को उभार रही थीं। बॉल अंदर बाहर से जगमगा रहा था। वेटर्स खाना सर्व करने में मशगूल थे। शहरयार का अंदर मजीद सांस लेना दुश्वार हो गया था। वो तेज तेज कदम उठाए बाहर आ गया। बाहर कदरे सुकून था। लॉन में आकर वो हॉल की ओट में बनी एक दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा हो गया। धड़कन तेज थी, आंसू गोया हलक में फंस चुके थे। उसने तारीक आसमान की तरफ नजरें उठाईं, जहां झिलमिलाते सितारे भी शायद उससे खफा लग रहे थे। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर देना। आज मेरी बेगैरती और बुज़दिली की वजह से तेरे दीन पर नाम आ गया। आंसू छलक कर बाहर निकल पड़े थे। उसे इस बात का इतना दुख नहीं था कि उसने कितनी मुश्किल से कर्ज लेकर बहन का मंगा जहेज बनाया था। उसे ज्यादा अफसोस था तो इस बात पर कि वो क्यों नहीं उसके लिए दीनदार लड़का ढूंढ सका। वो क्यों नहीं अपनी बहन को पर्दा करवा सका।
वो क्यों नहीं कुछ कर सका जब गैर मर्द उसके सामने नुमाइश बनी बैठी उसकी बहन की तस्वीरें अपने मोबाइल्स में महफूज कर रहे थे। किस किस एंगल से ले रहे थे, किस किस एंगल से देखेंगे। उसका सर शदीद दर्द से फटने लगा। वो मजीद सोच नहीं पा रहा था। वो हॉल के दरवाजे की ओट में दीवार से टेक लगाए खड़ा आंसू बहा रहा था। एक मर्द औरतों के हाथों बेबस हो चुका था। है ये तो मौलवी लगता है। मौलवी तो पर्दे के बारे सख्त होते हैं, आज बस नाम के ही मौलवी रह गए हैं। यकायक उसकी नजर लॉन में बैठी दो बुर्केदार औरतों पर पड़ी। उनकी पुश्त शहरयार की तरफ थी। उसके दिमाग से अचानक से सब गायब हो गया। क्या ये नाइला की शादी पर आई हैं? अगर हाँ तो ये इस वक्त अंदर क्यों नहीं है? उसके जहन में सवाल उठने लगे। वो दोनों खवातीन मुकम्मल पर्दे में इकट्ठी बैठी बातें कर रही थीं, मगर जिसामत के लिहाज से एक जवान लड़की लग रही थी और दूसरी कुछ उम्र रसीदा। वो फौरन से आगे बढ़ा था कि उनसे पूछ सके कि रात के इस वक्त जब सब खवातीन अंदर हैं, वो बाहर क्यों बैठी हैं, कि यकायक पीछे से आवाज आई, शहरयार भाई, आप तो शादी पर बुलाकर हमें भूल ही गए। ओह, बहुत माजरत यार, तुम बाहर क्यों हो? अंदर खाना सर्व हो रहा है। हाँ, बस सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह भाई, कोई परेशानी की बात नहीं है। बस नमाज पढ़कर आया था तो इधर ही बैठ गया। माज ने नजरें चुराते हुए कहा। नमाज का नाम सुनकर शहरयार को शर्मिंदगी हुई। पता नहीं क्यों हम अपनी खुशी के मौक़ों पर सबसे पहले अपने रब को नाराज करते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा रब हमारी खुशियां सलामत रखे। आज उसने शादी के कामों की वजह से एक नमाज भी नहीं पढ़ी थी। अच्छा, चलें अब चलते हैं अंदर। नहीं शहरयार, मैं अंदर नहीं जा सकता। क्यों मास? भाई बस आपको तो पता है ना, म्यूजिक इस्लाम में हराम है। ऊपर से फिर ये शादियों का कंबाइन सिस्टम, जवान लड़के लड़कियां वो भी इकट्ठे, और उनके लिबास, नजरों कानों की हिफाजत बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे माहौल में। फिर इन चीज़ों का डायरेक्ट असर रूह पर पड़ता है, ईमान पर पड़ता है। नमाजें खुशू से खाली हो जाती हैं। मुझे अपना ईमान बहुत अजीज है, इसलिए मैं इन सब से बहुत दूर रहने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह हम सब पर रहम फरमाए। बेहयाई के इस दौर में यूसुफ अलैहिस्सलाम की सी रवश इख्तियार करने वाले बाजी जीत जाते हैं, खा ईमान की हो, दिलों की या जन्नतों की। ओह, मैं बहुत माजरत चाहता हूँ माज। अरे आप क्यों माजरत कर रहे हैं शहरयार भाई? कोई बात नहीं, अच्छे बुरे का इल्म तो सबको है ना, बस शैतान ने उन्हें नफसानी ख्वाहिशात में मुब्तला कर रखा है। तुम्हें पता है, जब मैं पाकिस्तान के इन जवानों को देखता हूँ ना, मुझे बड़ा दुख होता है। अल्लाह ने उनमें बहुत पोटेंशियल, बहुत खैर रखी है। देखो, इंसान किसी दूसरे इंसान नामहरम की मोहब्बत में सब कुछ छोड़ सकता है, हत्ता कि जान देने की हद तक जा सकता है। माल की मोहब्बत में खुद को दिन रात थका सकता है, औलाद की मोहब्बत में रातें जाग सकता है। सोचो, अगर उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत आ जाए, जन्नत को पाने का शौक लग जाए, जहन्नम से बचने का खौफ लग जाए, तो क्यों ना वो अपनी जिंदगी अपने रब के नाम करेगा। मगर माज, क्या दूसरे ही लोग इनको पकड़ पकड़ कर झंझोड़ेंगे? हाँ, दूसरों को गहरी नींद से जगाने के लिए पहले तो उन्हीं को ही कोशिश करनी पड़ती है जो खुद जाग रहे हों। और जो जागना ना चाहे, बार बार जगाने पर हमें फिर भी अपनी कोशिश करते रहना चाहिए। अलबत्ता हिदायत का मामला तो वाकई दो तरफा है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने भी अपना पैगाम पहुंचाया था। जिन्होंने जागना पसंद किया, उन्होंने गफलत की जिंदगियां छोड़ दी, अपने आप को अल्लाह की राहों में वक्फ कर दिया, अपने जिस्म उसकी रजा पाने में घुला दिए। मगर जिन्होंने जागने को पसंद ना किया, गफलत और नफ्स परस्ती की जिंदगी में रहना चाहा, उन्हें अंबिया के पैगाम, मोजिज़ों, किताबों तक ने फायदा ना दिया। यानी कसूरवार तो फिर इंसान ही ठहरा। बिल्कुल वही ठहरा। अल्लाह हर एक को हिदायत का रास्ता दिखाते हैं किसी ना किसी जरिए से। अब इंसान की चॉइस का इम्तिहान होता है, वो क्या चूज करता है, दुनिया और उसकी फानी जिंदगी या दीन और आखिरत की कामयाबी। शहरयार के पास मजीद कोई जवाब नहीं था। उसने असबात में सर हिलाया। मैं आता हूँ। ये आपके साथ है? जी जनाब। आप भूल गए आपने मुझे फैमिली के साथ इनवाइट किया था? माज ने मुस्कुराते हुए कहा। ओ हाँ,
मुझे वाकई याद नहीं रहा। जी, वो मेरी वालदा और बहन है। फिर वो बाहर क्यों है? अंदर आमी और सिस्टर से मिल लेती। शहरयार, जिस रीजन से मैं बाहर हूं वो भी उन्हीं वजूहात पर बाहर बैठी हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है माज। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारी फैमिली दीन पर अमल पैरा है। काश मैं भी अपनी फैमिली को इस तरफ ला सकता तो आज ये सब अंदर ना हो रहा होता। मेरे बाहर आने की वजह भी यही सब फहाशी थी। मुआज ने आगे बढ़कर शहरयार को गले से लगा लिया। दिल अल्लाह के हाथ में है, जो उनको बदल सकता है उसी से मदद मांगो। शहरयार मुआज के गले लगे, बस सर हिलाकर ही रह गया।